everyone. Today we will study right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल किस लिए यूज किया जाता है? राइट हैंड थंब रूल किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं. ओके, सो राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. सो नाउ द क्वेश्चन इज, what does right hand thumb rule states? According to right hand thumb rule, this thumb points in the direction of current and these encircled finger points in the direction of magnetic field. Okay, so राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जो थंब है हमारा राइट हैंड का वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करता है और जो हमारी एनसर्कल्ड फिंगर है वो पॉइंट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब मैंने फर्स्ट डायग्राम में क्या किया है आप देख सकते हो. ये जो वायर है, मैंने एक वायर ली है, उसको अपने होल्ड में ग्रैस्प किया है, अपने हाथ में ग्रैस्प करके रखा हुआ है. उसमें जो ये वायर है ये मेरी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है. इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है? अपवर्ड. सो इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? I can show you like this. Suppose the tip of this marker points in the direction of current and I am grasping this conductor like this. So this thumb of mine is pointing in the direction of current and these encircled finger points in the direction of magnetic field. So what you observe, the direction of magnetic field is anticlockwise like this. The direction of magnetic field is anticlockwise. Okay, so in the first figure what we observe, the direction of current is upward and the direction of magnetic field is anti-clockwise. Clear? Now hold this marker like this. Okay, now we will grasp it like this. Okay, so the direction of current is downward and the direction of magnetic field is clockwise. So in this figure you can clearly see the direction of current is what? Downward. And the direction of this curled finger, or you can say the direction of the magnetic field is clockwise. Clear? So here we can also draw like this. The direction of current upward and the direction of the magnetic field lines is anti-clockwise. Here it is clockwise. Clear? So this is about right hand thumb rule. Now the question is कि क्या हमारी कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है? सो द आंसर इज यस. कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है. सो आई विल शो यू हाउ. सपोज आई एम ड्रॉइंग अ बार मैग्नेट ओवर हियर. This is North Pole and this is the South Pole. We know that magnetic field lines start from North Pole and terminate at South Pole. Here also the magnetic field lines start from North Pole and terminate at the South Pole. Magnetic field lines are going outwards and magnetic field lines are going inwards at the South Pole. So the same thing is happening over here also. If I take the wire like this and the direction of current anti-clockwise, here if you observe the direction of the magnetic field lines is inwards
and from this side it is going outwards like this. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्ड्स है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड है. इनवर्ड है तो यानी कि कौन सा पोल है, साउथ पोल. और अगर यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है, आप देख सकते हो कि यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है, मैंने अभी आपको दिखाया इस तरीके से कि बाहर की तरफ आ रही है, तो ये जो पोल है ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ. तो कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. क्यों? क्योंकि वो खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. और यही चीज आपके ऑस्टन ने भी बताई थी कि करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है. अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. मैंने क्या किया, मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, एक कंडक्टर लिया है यहाँ पे XY, इसको कनेक्ट किया है थ्रू अ बैटरी. This end is negative and this end is positive, and we know current flows from positive to negative. So the direction of current here is upward. Okay. In the second figure, here positive terminal and this is negative terminal, and we know current flows from positive to negative. So the direction of current in the figure B is downwards. अब हमें इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी है ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और यू कैन से स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. तो हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने के लिए जो रूल यूज करेंगे वो रूल होगा राइट हैंड थंब. इस फर्स्ट फिगर के अंदर हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अपवर्ड. डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी क्या है, अपवर्ड है. सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो हियर वी कैन ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू बी एंटी क्लॉकवाइज. इन द सेकेंड फिगर, the direction of current is downwards. So apply right hand thumb rule. The direction of magnetic field line is clockwise. The direction of magnetic field line is clockwise. So we can represent it here also. So in this हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम पोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं, मतलब पहले मैंने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लगाया, फिर पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, और दूसरे केस में मैंने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाया बैटरी का या नेगेटिव टर्मिनल लगाया बैटरी का, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है. सो फर्स्ट फिगर में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली वो क्या निकली, एंटी क्लॉकवाइज. सेकेंड फिगर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या निकली, क्लॉकवाइज. ओके, तो अगर हमें किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अराउंड ये पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन है, तो हम राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करके पता कर सकते हैं. दूसरी बात हमें इसके अंदर ये पता चली कि जो पाथ होता है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, वो कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स. जो हमें पाथ दिख रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो पाथ आपको कैसा दिखा, कंसेंट्रिक सर्कल्स. अब हम पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं. तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली आपको ये बताएगी कि इस वायर के अराउंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है या फिर वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है. सो हमारा फर्स्ट फैक्टर है जिसपे हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड डिपेंड करती है, वो फर्स्ट फैक्टर क्या है, हमारा करंट. सो अगर हम करंट को बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ जाएगी कि जैसे ये आपकी वायर है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी और लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होने की वजह से आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को क्या कर दिया, कम कर दिया है, तो उस केस में कम नंबर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी और कम नंबर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, वीक होगी। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के। ओके, सेकंड जो हमारा पॉइंट है जिसपे ये डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। डिस्टेंस फ्रॉम द वायर का मतलब क्या है कि आपने सपोज मैग्नेटिक कंपास लिया, ठीक है, आपने मैग्नेटिक कंपास को इधर रखा तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगी वो कम होगी। जैसे जैसे आप इस मैग्नेटिक कंपास को इसके पास लेकर आओगे तो इसके अंदर आपको जो डिफ्लेक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी। तो इसने क्या बोला कि वायर से जितना दूर आप मैग्नेटिक कंपास को रखोगे वो उतना कम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा और जितना पास आप इस मैग्नेटिक कंपास को उस वायर के पास रखोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को ये एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मुझे इस मैग्नेटिक कंपास को इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से वायर के क्या करना पड़ेगा, पास रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इसे पास रखूंगी तभी मुझे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और जब मैं इसको दूर रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो आपको इससे कंक्लूजन मिला, वो कंक्लूजन क्या था कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक कंपास फ्रॉम द वायर। क्लियर? सो दीज आर द टू फैक्टर्स on which the strength of magnetic field around a straight conductor depends. The first factor is your current and the second factor is the distance of the magnetic compass from the wire. So current के magnetic field strength directly proportional होती है और distance of magnetic compass from the wire के magnetic field strength क्या होती है, inversely proportional होती है। मतलब कि अगर मैं इस distance को क्या कर दूं, इस distance को अगर मैं ज्यादा कर दूंगी तो मुझे कम डिफ्लेक्शन मिलेगी, मुझे वीक मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा, वीक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और जितना मैं इस मैग्नेटिक कंपास को इसके पास लेकर जाऊंगी उतना ही ज्यादा मुझे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। थैंक यू क्लास।